इदानीं वयं खलु कोशः अत्र कोशः अपेक्षितः कोशः इत्युक्ते इदानीं डिक्षनरी इत्युच्यते सो डिक्षनरी मीन्स् वाट् डिक्षनरी मध्ये कथं भवति डिक्षनरी एन्ट्रीस् शब्दः अर्थः शब्दः लिङ्गं पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग जेण्डर् इन्फर्मेशन् देन् अर्थः किन्तु अस्माकं कोशेषु कथं भवति अस्माकं तु पर्यायवचनः अपि भवति अर्थविवरणमपि भवति तत् सम्यक् डिफ्रेण्ट् तत् अस्माकं कोशाः कीदृशाः उपयोगः कः इत्यादिकम् इदानीं किञ्चित् पश्यामः तत्तु ऐ इन्वैट् डाक्टर् शिवचन्द्र Aruna they will explain to you Vagvidam. Tadathamev we are giving that hyphen. Ramakrishna. What is Ramakrishna? Samastampada. Ramascha, Krishnascha. It's a good question actually. See, Ramakrishna. Katham Ramakrishna. What is Ramakrishna? Ramascha, Krishnascha. See, we see this no out. What is out? So, one computer does. Computer keep karoti. This hyphen asti khalo. Last this part swiguru. Either part swiguru. Krishna shabda kutra kodi. Koshe. Khalo. Krishna is the pratipadikam pram. Parent table pashyati. Krishna is the kodi. Dvivachanam khalo. Krishna. Prathama Dvivachanam. So it gives Prathama Dvivachanam. And then it attacks Rama. Sudhamana. Got it? Takes the end of Antima Shabdam Svidroti. Krishna. Krishna Tatra Ramakrishna Tatra Nabhodi. Koshe Nabhodi. Anapekshitam. But Krishna Shabdaha Tatra Bhodi. Krishna Shabdam Tat Svigroti Kosha. Pratipadikam Kim Bhodi? Krishna iti Bhodi. Gender? Pullinga Bhodi. Then how iti Kutava Prapyate? Pullinga. Krishna Shabdasya Linga. Pullinga. Who? Punaha how iti Kutra asti? Dvitiya. Kutava Prapyate? Paradigm. तत् उपयोगः वर्तते तत् तत्र कथं पश्यतु तत्र काण्टेक्स्ट् दृष्टव्यं यदा सः नियमः देयः इदानीं सेण्टेन्स् स्वीक्रियते चेत् रामकृष्णो गच्छतः चेत् प्रसङ्गानुसारं तत् सत् कनेक्षन् भवति एतदर्थं नियमः मेशिन् ट्रान्स्लेशन् अस्ति खलु नाम अनुवादः क्रियते चेत् देन् यु हाव् टु सी द कम्प्लीट् सेण्टेन्स् तदर्थमेव मया उक्तं वाक्यमेव स्वीक्रियते Padasya svikriyate cheti you cannot get the complete meaning. So vakyam svikriyate, vakyasya visleshanartham pada vibhaga kriyate. Kintu final bit bhavati tadattameva asmakapi acharya dattam. Padachetah padarthokti vigraha vakyayojana. Agatama vakyayojana padarthah padachetah पदार्थोक्तिः विग्रहः विग्रहः नाम विग्रहः कृदन्तस्यापि भवति तद्धितस्यापि भवति समासस्यापि भवति विग्रहः वाक्ययोजना नाम ह्यः मया कृतं खलु तत् कनेक्षन् सम्बन्धः अस्तु Now that is a bigger expansion. See, actually, Ramakrishna is there. Ramakrishna. What is the meaning? Vigraha means that the expanded meaning. That is Vigraha. Okay. No, that not we see. That is understood. Now Ramakrishna. We give Rama hyphen Krishna and mark it as DI.
DI means Idharitratva. So automatically what is Idharitratva? Idharitratva Vigraha should be like this. Ramaha cha, Krishnaha cha, Ramaha. This Ramaha cha, Krishnaha cha, that we expand that meaning out of these titles. Okay. For example, Bahumani means Vedambara, Vedambara. So the actual for this is common action. Vedam Ambaram Yasya is Yasya. Yasya Yaha Yam Praptodakam. Praptodakaha Brahma. Praptam Udakam Yam. That's the Dvitiya. So this no, according to this two is connected to this. Okay, get this up. This two is connected to it. That is the Pratham. If it is three, Tritiya Bhagavati, then three is connected to it. Yena. Okay. If it is something, then three is connected to it. Okay. Five is Smart. Pita Jala. Bottle. Bottle is Pita Jala. It's Pita Jala is Smart. This is then here is 5. Okay, 5. That 5 is attached to it. Isma, Isya, Ismi. Like that. Okay. Tatpurusha means again Tatpurusha Rajapurusha. That 6 is attached to the first. Okay, Rajan is the Tatpurusha. That 6th is attached to the first. Then Chakulaya, then Tritiya is attached. And then we have to frame the हमारे कोशे विषय कारण के लिए इला कोशाने का तो मुझे किम आगे चलने होता है किसी ने आपते कोशः एतत् सर्वम् आगच्छति किल अस्तु आपते कोशः एवं शब्दकल्पद्रुमकोशः तदुभयं पुनः अमरकोशः वैज्ञानिककोशादिकं सर्वं समानरीत्या अस्ति वा किम् अस्ति डिफरेन्स् कथं तत् भिन्नम् शब्दकल्पद्रुमात् अमरकोशस्य विभागं कथं तद् विभक्तम् शब्दकल्पद्रुमा दृष्टा वा आपते डिक्षनरी अस्तु तर्हि आपते डिक्षनरी यदस्ति तस्य पुनः अमरकोशः पठितः किल उभयोः किं डिफरेन्स् वर्तते व्यत्यासः कः व्यत्ययमस्ति वा अस्तु अमरकोशे श्लोकरूपेण लिखितं वर्तते किल अन्यत्र कथम् इत्युक्ते पदं तस्य अर्थः तद्रीत्या दत्तं किल तदपि आल्फाबेटिकल् आर्डर् मध्ये दत्तम् आपते कोशे आपते कोशं वा अथवा शब्दकल्पद्रुमा वा वाचस्पत्यं वा तादृशकोशः पश्यामश्चेत् तत्र पदं तस्य अर्थः एवं रूपेण नास्ति अस्तु अस्माकं शास्त्रपरम्परा कोशरचनारीतिः यदा आसीत् तत् श्लोकरूपेण आसीत् श्लोकरूपेण अस्माकं कोशाः श्लोकरूपेण क्रियते स्म तत् किमर्थं श्लोकरूपेण क्रियते स्म इत्युक्ते स्मरणार्थं श्लोकरूपेण भवामश्चेत् इदानीं भवन्तः प्रायः सर्वे अमरकोशं कण्ठस्थीकृतवन्तः किल अस्तु के कण्ठस्थीकृतवन्तः अमरकोशं के कण्ठस्थीकृतवन्तः अस्तु केचन जनाः सन्ति अस्माभिः कण्ठस्थीकर्तुं शक्यते आपते कोशं दत्वा कण्ठस्थीकरोतु इति वदामश्चेत् शक्यते वा काठिन्यं वर्तते किल स एव कारणं
अस्माकं कोशपरम्परा श्लोकरूपेण कृतमिति कण्ठस्थीकरणार्थं स्मरणार्थं तस्याग्रे प्रयोगार्थं च ईसी भवति इति कारणतः श्लोकरूपेण अस्माकं कोशानां रचना जाता। अस्तु, इदानीं कोशाः सामान्यतया समानार्थककोशाः इति नानार्थककोशाः इति च भवति। अस्मिन् विषये अरुणा महोदया उच्यते। इदं कोशाः इति कति हिंदी भाषा में कितने कोश होंगे शब्दकोश आपके हिसाब से संस्कृत भाषा में? आप जानते हैं, हमारे कोश को जानते हैं, वैजयंती कोश जानते हैं, हलायत कोश सुना है, मेदिनी कोश। इस तरह से 80 से भी ज्यादा अभी उपलब्ध है हमारे पास। कुछ तो सिर्फ पांडुलिपि के रूप में ही है, उनमें बहुत सारा ज्ञान है। उनमें से दो तरीके के हैं। एक अमरकोश की तरह समानार्थ, मतलब एक शब्द के पर्यायवाची शब्द वहां पर दिए जाते हैं। दूसरे हैं नानार्थ, एक ही शब्द के अलग अलग इनके अर्थ हैं। तो कुछ कोश हैं वो सिर्फ वही शब्द लेके उनका उन्होंने कोश बदल किया है। एक हमारा कोश का हमें पता है, उसमें जैसे कि आप जो यदि रसोई में जाएंगे, रसोई में चीजें किस तरह से आप वहां पर रखेंगे? सारे मसाले एक तरफ रखेंगे, सारे धान्य एक तरफ रखेंगे। क्यों रखते हैं इस तरह से अलग इकट्ठे? आसानी से आपको जो चीज आप ढूंढना चाहते हैं वो वहां पर आपको आसानी से मिल जाती है। अब लाइब्रेरी में जाते हैं, वहां पर आपको एक किताब की जरूरत है, तो आप कहाँ जाते हैं? आपको मालूम होता है कि कौन सी काउंटर पे, कौन सी शेल्फ पे जाना है, किस तरह से पता लगता है। तो हमारे पूर्व कोशकार भी उनके कोश इसी तरह से उन्होंने रचित किया है, ताकि जो उपयोग करेंगे कोश के कवि होंगे, कवि उनको एक शब्द का छंदोबद्ध के हिसाब से उनको एक सिलेबस या 2 सिलेबस और 3 सिलेबस के हिसाब से उनको चुनना पड़ेगा, तो उनको स्मरण में आसानी से आए। इसीलिए कोई शायद रिसर्च करते होंगे या उनके प्रयोग के लिए चाहिए होगा, तो उन्होंने अपने जिनको जिस चीज की वस्तु आवश्यकता है पदों की, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है। अब अमर कोश में उन्होंने तीन कांड में उनको डिवाइड किया है पूरी कोश। प्रथम कांड में वर्ग है, तो स्वर्ग वर्ग है, व्योम वर्ग है, दिक् वर्ग है। स्वर्ग वर्ग में स्वर्ग के देवी देवताओं के नाम वगैरह वहां पर है। व्योम वर्ग में अंतरिक्ष के जो तारे हैं और ग्रह हैं उनके बारे में है। दिक् वर्ग है, काल वर्ग है। इस तरह से उन्होंने वहां पर कैटेगराइज किया है। द्वितीय कांड में भूमि के संबंधित सारे शब्द हैं। भूमि है, पूरा शहर के बारे में, पथ है, रोड है, इस तरह से शब्द वहां पर है। शैल वर्ग में माउंटेन, पर्वत है, पर्वत के जो भी उसके संबंधित शब्द हैं वो सारे यहाँ पर इकट्ठित किए गए हैं। उसी तरह से सिंहादि वर्ग में जो है पशु पक्षी, उनके सारे यहाँ पर है। ये अमरकोश का स्ट्रक्चर है। तृतीय अध्याय में उन्होंने इस तरह से कैटेगराइज किया है। अब वैजयंती, अगला जो है वैजयंती कोश में उन्होंने थोड़ा सा और भी डिटेल में क्लासिफाई किया है, तो थोड़ा सा बड़ा है। उसी एक शब्द को और भी जल्दी अगर आपको पकड़ना है, ढूंढना है, वो आसान हो जाता है। तो इसमें दोनों पर्याय भाग और नानार्थ को पृथक किया गया है। हालांकि अमरकोश में भी नानार्थ वर्ग है, लेकिन उन्होंने इसको और भी द्वयक्षरा के हिसाब से उन्होंने
अब देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, स्वर्ग कांड में आदिदेवाध्याय और फिर लोकपालाध्याय और यक्षाध्याय यहाँ पर हमने समाप्त कर दिया, और फिर अंतरिक्ष कांड में ज्योतिराध्याय, ज्योतिष के संबंधित सारे पद यहाँ मिल जाएंगे एक जगह पर। फिर मेघाध्याय और खगाध्याय और शब्दाध्याय। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने जो न्यायिका है उनको समझ में आएगा कि उन्होंने शब्दाध्याय यहाँ पर जोड़ दिया है, और खगाध्याय पक्षी आकाश में दिखते हैं तो उन्होंने अलग से यहाँ पर, इनकी अपनी स्टाइल है, उन्होंने इस तरह से लोगों को जिस तरह से आसानी से वो शब्द प्राप्त हो उसके हिसाब से उन्होंने किया होगा इस तरह से। दूसरा भूमि कांड यहाँ से सबसे बड़ा कांड है, यहाँ पर देशाध्याय है, और देशाध्याय में अगर आप देखेंगे सारे कोश, उसमें देश के जो स्थल थे उस जमाने में, जिस जमाने में कोश रचित किया गया है उस जमाने में जो जो प्रांत थे, जो जो राज्य थे, उसके नाम वहाँ पर रहेंगे। तो देश का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसका भी बोध हो सकता है हमें कोश से। तो ये शैलाध्याय, वनाध्याय, ये सारे इस तरह से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। कुछ और कोश है वो अगले जो हलायुग कोश है, इसमें तो सिर्फ 3 कांड में डिवाइड किया है, सारे शब्द उसी में उन्होंने कंटिन्यूसली ऐड कर दिया है। तो संत कांड, भूमि कांड और सामान्य कांड, बस इतना ही। तो अमर कोश में अब जैसे कि हमें अपना आपते या फिर अमर कोश में जो डिफरेंस है वो इसीलिए इस उदाहरण से आपको शायद पता लग जाएगा। तो समय के जो कॉन्सेप्ट है, जो विशेष है, हमें समय के बारे में अगर हम जानना है, समय किस तरह से विभाजित किया जाता है, कितने कितने उसके यूनिट्स होंगे, अगर हमें जानना है तो आप अमर कोश में समय जहाँ पर रखा है, समय के बारे में जहाँ दिया गया, पहला श्लोक है 141, मतलब एक प्रथम कांड में चतुर्थी वर्ग में प्रथम श्लोक है। सो तिथि, वार, ये सारे जो है, और एक दिवस यहाँ पर है, तिथि है और दिवस है, दिवस के जो भी भेद है, दिनांक, संध्या, दिवस, ये सारे वहाँ पर रात्रि है, इस तरह से सारे एक के नीचे एक आपको मिल जाते हैं। तो ये 4-5 श्लोक होंगे, वो सारे आप पता लग जाएगा तो आपको पूरे पद का ज्ञान हो जाएगा। और यही जो है वैजयंती कोश में उन्होंने काल का शब्द लिया है, समय काल दोनों सेम है, उन्होंने काल लिया है एक कॉन्सेप्ट, और उन्होंने काल को डिवाइड किया है, एक त्रुटि से शुरू किया है, मतलब एक क्षण, वहां से वो किस तरह से विभाजित है, तो इस तरह से पूरा डिवीजन उन्होंने लेके दिन तक किया है। फिर दिन के बाद फिर पक्ष, फिर पक्ष के बाद महीना, फिर ऋतु, संवत्सर, ये सारा एक के नीचे एक, कितने श्लोक है, 25 श्लोकास में सारे आपको त्रुटि से मनवंतर तक सारे शब्द आपको वहां पर मिल जाएंगे एक जगह पर। तो इसमें ये इस तरह से उन्होंने ग्रुप किया। तो ये तो काल है, फिर यहाँ पर स्पेस कम है, लेकिन ये और है। अब इसमें देखिए ये वाला काल है, और ये इस क्रम में, जैसे कि एक मोमेंट है, अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करते हैं मोमेंट, और एक मोमेंट, 2 मोमेंट है, तो फिर उसको लघुअक्षर, फिर वो 2 लघुअक्षर उसको क्या बोलते हैं, फिर 2 अक्षरपात को क्या बोलते हैं, उस तरह से वो क्रम से यहाँ पर उन्होंने दिया है, ताकि अगर समय का किस तरह से, अगर ज्योतिष कोई है, उसमें रुचि है, उनके पास किस तरह से कैलकुलेट करना है, एक जगह पर आपको सब मिल जाता है। तो इतने जो 3-4 श्लोक में आपको पूरे दिन का जो जिस तरह से विभाजन होता है समय, वहां पर मिल जाता है यहाँ पर। फिर तो ये वाला श्लोक है जो जहाँ पर वो कालो ने यहाँ त्रुटि श्रुति धारा घटिका तक है। तो
ये तो है, अगर आप संस्कृत जानते हैं तो श्लोक का आप विभाजन करते हैं और आप श्लोक पढ़ते ही आपको मालूम हो जाता है कि ये कौन सी पदों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हमें इसको कंप्यूटर में अगर फीड करना है ताकि और ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो, सारे तो श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर हमें जिस तरह से मैडम ने सुबह में बताया है कि कंप्यूटर की भाषा में उसको बताना है, तो इसको इसी तरह से हमें कोश को कंप्यूटर के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, वो हमारी आज की प्रक्रिया है। वो हम बताएंगे कि किस तरह से हमने किया है और किस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके जो कोश है, कोई भी कोश लेके आप इसको कंप्यूटर के लिए तैयार कर सकते हैं ताकि और ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो हमने क्या किया है, एक श्लोक है, जैसे कि ये हलाय कोश में से लिया गया है एक श्लोक, पुष्पम प्रसवम प्रसवा कुसुमम। अब ये जिस तरह से श्लोक बना है, श्लोक पढ़ के आपको मालूम है कि अमरकोश में उसको नामलिंगानुशासन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हाँ, लिंग का भी पता लग जाता है वहाँ पर। अब इसमें इस श्लोक में आप देखिए, इसमें पुष्पम लिखा है, तो ये नपुंसक लिंग में प्रथमा एकवचन, ज्यादातर सारे कोश प्रथमा एकवचन रूप लेते हैं, तो वो रूप को देख के हमें पता लगता है कि प्रातिपदिकम क्या है। तो ये है प्रथमा एकवचन रूप, ये है, और इसका हम प्रातिपदिकम, क्योंकि प्रथमा एकवचनम प्रातिपदिकम भी लगाना जरूरी है ताकि आसानी हो। कोई प्रथमा एकवचन जानते हैं, उसका प्रातिपदिकम क्या है, ये भी उसका हम पता लगाएं, तो उसका हम प्रातिपदिकम हम डालते हैं। तो इसको एक टेबल बनाएंगे हम, ये टेबल बना के उसमें ये 4 विभाग करेंगे, तो श्लोक का एनालिसिस करेंगे। तो इसमें इन श्लोक में क्या क्या पद का विवरण दिया गया है उसके बारे में हम करेंगे एक्सरसाइज। अभी आपको 2 श्लोक मिलेंगे हलाय कोश के, और एक ब्लैंक पेपर भी दिया गया है। आप उस पेपर में ऐसा कोश बना के, ये उस श्लोक में जो जो पद है इस तरह से आपको वहां पर लिखना है। तो पहला कॉलम है प्रथमा एकवचन, जो श्लोक में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अगर संधि है, संधि विच्छेद करना है और उसमें आइडेंटिफाई करके वहां पर, और वहां पर प्रातिपदिकम उसका क्या है, आप वो उसमें से आप जानते होंगे, वो प्रथमा एकवचन को देख के आप प्रातिपदिकम जान के वहां पर लिख सकते हैं। फिर उसका लिंक यहाँ पर दिया गया है, पता लग जाएगा तो लिंक डालेंगे। और उसका जो है, ये तो अंग्रेजी में है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर श्लोक में उसका कभी कभी कुछ कठिन शब्द का विवरण भी दिया जाता है, या फिर अगर कोई संदेहास्पद शब्द है उसका विवरण भी दिया जाएगा। तो वो वाला यहाँ, वो जो भी है वहां पर कोश में दिया हुआ, वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो ये एक है। दूसरा नेक्स्ट एक और शब्द है। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई शब्द जो है नित्य बहुवचन हो सकते हैं, जैसे कि आप, तो वहां पर तो एक स्कीम है, टैगिंग स्कीम। एक ये 12 तरीके का है, ऑप्शंस हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। एक तो पुन है, स्त्री है, पुन ये तो आप जानते हैं। एक अव्यय पद हो सकता है, वो अगर अव्यय पद च या ऐसा कुछ आ गया, या कोई अव्यय स्वयं है, स्व वहां पर अव्यय पद है, इस तरह से अगर है तो वो आप अव्यय यूज करेंगे। बाकी कोई पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में भी प्रयोग होता है तो कोई शब्द, तो पुन नपुन इस तरह से, पुन हाइफन नपुन इस तरह से आप डालेंगे वहां पर। कोई तीनों लिंगों में शेष शब्द हैं, तो तीनों लिंगों में हम उपयोग कर सकते हैं उसको, पुन नपुन स्त्री इस तरह से हम टैगिंग कर सकते हैं। कोई डाउट्स है? क्योंकि आपको एक्सरसाइज करना है, अभी 2 श्लोक मिलेंगे, आपको उसकी टैगिंग करना होगा। कोई अगर डाउट्स है तो आप
टेबल को आप डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर जो है, जो आपको श्लोक में जो पद मिलता है, तो वो ये प्रथमा एकवचन यहाँ पर तो इसका प्रातिपदिक रूप यहाँ पर आएगा। तीसरा जो है इसका लिंग। और चौथा कॉलम जो है, अगर कोई आपको वहां पर अधिकतर इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे इधर ये श्लोक आप देख सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर पुष्पेषु विकासवाचकाः शब्दाः, तो ये पदम है, क्या ये यहाँ पर यह विवरण है। उन्होंने यहाँ पर पोस्टकार्ड में क्या बताया, ये सारे जो शब्द है ये उस अर्थ में दिए जाते हैं। इसका एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। तो आप ये जब आप ये जो हालांकि यहाँ पर विवरण वैसा वो ये वाला जो वाक्य है यहाँ पर डाला, अगर ऐसा है सारी जगह पर सारे श्लोक में नहीं मिलता है ऐसा, कभी कभी कोई कठिन शब्द या कोई जहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन की या एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, वहां पर इस तरह से वाक्य मिल सकते हैं। और हलाइन कोश में ये भी आपको मिल जाएगा कि एवं अतयति बुद्धिया या ऐसा कुछ पादपूरण के लिए वाक्य प्रयोग किए जाए, उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, उनको वहां पर जोड़ने की जरूरत है।